Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून सर। सर एक भी बच्चा नहीं आया अभी। मैम थोड़े कम ही आएंगे ना क्योंकि 10th का है ये, तो दे वुड हैव गॉन टू स्कूल आल्सो। तो ओके जो स्कूल नहीं गए हैं ना उन्हीं में से आएंगे, तो द अटेंडेंस विल बी स्लाइटली लो। ओके ओके सर, चलिए ओके। Shelly has joined, but she is not switching on her mic. Voice connected नहीं है अभी. She has also left. Even 12th में attendance was very low. Only one child, one student joined, but 11th was okay because they are not going to the school. So it was usual, not very high, but usual. ओके सर, 10 मिनट्स वेट करते हैं, फिर देखते हैं फिर हैं। Yeah, yeah. Let's wait for 10 minutes. Usually, ओके matlab, there are some students who join till 2, 3, 4 minutes late. वैसे 10th में बहुत late नहीं आते students. The good part is this. ओके सर। हमारे 12th वाले तो मैम sometimes they join after 15 minutes also. I don't think somebody is going to join.
Yes, Tanvir. Can you hear me? Tanvir, can you hear me? Tanvir, हाँ यस सर can you hear me? यस सर बेटा एक जगह बैठ जाइए यस सर और बैठ गई हाँ एक जगह बैठ जाओ एंड ऑल्सो put some pen and pencil with you, right? We'll यस do सर circles, that's important. Gaurav, switch on your camera. Gaurav and Jyoti Bhati. Huh. Okay. Okay, sit down and take your notebook and pencil, right? Let's do some questions in circles. Okay. So, okay, तो जो हमारा 10th में circles का chapter है, okay, we are revising circles chapter, okay, so इससे पहले we have already completed till application of trigonometry, ठीक है, तो अब उसके आगे circles, next chapter, okay, तो circles in 9th is a huge chapter, okay, and with about 12 theorems, it's a huge chapter, but in 10th, circles is a small chapter. Okay, not very difficult, but only if you know your 9th chapter well. ठीक है, क्योंकि 9th के theorems 10th में use करने पड़ सकते हैं. Okay, so although they will not ask you to prove the theorems of 9th standard, लेकिन 9th standard के theorems आपको आने चाहिए. ठीक है, तो वो आप जरूर रिवाइज करिए एक बार, क्योंकि in solving the problems you may need them. Understood? Yes, Okay. sir. Okay, so let's just do the theorems which are in 10th standard. Okay, there are two theorems. The tangent at any point on a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. Okay, so what does this theorem mean? It's a simple theorem. What it means is that if there is a tangent, okay, let's say there is a tangent here. So what is a tangent? Everybody knows what a tangent is. सर जो एक पॉइंट होता है जो इंटरसेक्ट करता है सर्कल को एक पॉइंट पे. हाँ, इंटरसेक्ट नहीं बोलेंगे, टच करता है, राइट, है ना. इंटरसेक्ट वर्ड थोड़ा सा गलत हो जाएगा, टच बोल देंगे हम, बट योर डेफिनेशन इज करेक्ट अदरवाइज. ओके, और द थियरम सेज दैट जो वो पॉइंट जहां पे वो कांटेक्ट करता है या टच करता है, उस वाले पॉइंट पर अगर रेडियस बनाया जाए, ओके, तो वो परपेंडिकुलर होता है. दिस इज व्हाट दिस थियरम सेज. This is a basic theorem. We all know this. If we have to prove this theorem, okay, कैसे prove करते हैं इस theorem को? Can somebody tell me what is the method of proving this theorem? निधि. सर ओपी लाइन को शॉर्ट डैश दिखा देंगे, हो जाएगा प्रूफ. हाँ, yes, very good. Okay, everyone please switch on your cameras. Hans, Nidhi. निधि भाटी, हंस नागर, बेटा कैमरा ऑन करिए. Nidhi Bhati, switch on your camera.
ओके, इन नेक्स्ट 1 मिनट प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। ठीक है, तो ये हम कैसे शो करते हैं कि ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है। अगर हम कोई भी और पॉइंट लें, राइट, ऑन दिस टेंजेंट, that point has to be outside the tangent. Why? Because the tangent only touches the circle at one point. Every other point has to be outside the circle, otherwise it will be a secant. So if it is the point is outside and we connect the point, okay, so this is radius plus something. Okay, so this is the point of contact. Let's say this point is T and this is T dash. Then OT dash is always greater than OT. Okay, and this is true for all T dash where T dash not equal to T. Right? It means that OT is the shortest distance. And we already know through a theorem that the shortest distance from a point to a line is a perpendicular distance. ठीक है, ये हम जो है 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी कर चुके हैं ये थियरम, एक्चुअली 8th स्टैंडर्ड में, राइट? सो वी ऑलरेडी नो दिस. सो वी हैव प्रूवन दैट OT इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. ओके, बस इतना ही इसका प्रूफ है, सिंपल सा 1 लाइन प्रूफ है. ओके, now the question is, how many tangents can be drawn from a point to a circle? How many tangents can be drawn to a circle from a point? Nidhi, I can't see your face, बेटा. कैमरे को रीओरिएंट करिए ताकि आपके फेस पे रहना चाहिए कैमरा. अरुण, स्विच ऑन योर कैमरा. Arun, switch on your camera, and Nidhi, correct your camera angle. You should be visible. Your ceiling is visible. That's not okay. Huh. How many tangents can be drawn from a point to a circle? What is the answer to this question? Tanveer, can you tell this? तनवीर आलम, बेटा बताइए कितनी टेंजेंट्स बना सकते हैं हम एक पॉइंट से? सर 2. ठीक है, इट्स नॉट अ completely correct answer, but it is a good answer. Okay, it is correct to some extent. What is a completely correct answer? Who will tell me that? I will give you a hint. The problem in this question is how many tangents can be drawn from a point. ये नहीं बताया ये पॉइंट कहां पे है. ठीक है ना, ये नहीं बताया हमने कि पॉइंट कहां पे है. तो अब ये जब मैंने आपको ये बात बता दी, अब आपका आंसर कैसे चेंज होगा? What will be the answer now? Instead of 2, what will be the answer when we do not know where the point is? So इस केस में क्योंकि हमें पता नहीं है पॉइंट कहां पे है, तो there are 3 cases. There are 3 cases we have to consider. Okay, what are those cases? The point is inside the circle, case 1. Point is on the circle, case 2. And point is outside the circle, case 3. Okay, so case 1, how inside the circle कितनी बनेंगी tangents?
0, टेंजेंट अंदर से तो बन ही नहीं सकती। केस 2, ऑन द सर्कल कितनी बनेंगी टेंजेंट्स? केस 2 में कितनी टेंजेंट बन सकती हैं व्हेन द पॉइंट इज ऑन द सर्कल? Who will answer this easy question? बेटा तनवीर आप ही बताइए, आपने 2 बताया था, तो अब ये केस 2 में कितनी टेंजेंट्स बनेगी जब पॉइंट सर्कल पे है? तनवीर? यस सर। हाँ, अब बताइए केस 2 जो है पॉइंट सर्कल पे है, तो कितनी टेंजेंट बन सकती हैं? सर 4 बन सकती हैं। 4? यस सर। कैसे बनेंगी 4 बताइए, पॉइंट सर्कल पे है। सर 1। केवल 1 बन सकती है, ठीक है, तो 1 टेंजेंट। और जब यस सर। बाहर है केस 3 तो 2 बन सकती हैं, जो आपका आंसर था। जो बिना सोचे अगर हम पहला आंसर देंगे तो कॉमन आंसर यही है, इसलिए आपका आंसर गलत नहीं था लेकिन इनकम्प्लीट था। तो ऑल द केसेस हैव डिफरेंट आंसर, इसमें 2 बनेगी, एक ऐसे जाएगी और एक ऐसे जाएगी, ठीक है। तो नाउ वी कैन से there are 2 tangents possible from a point outside the circle, one from a point on the circle, and no tangent from a point inside the circle. So the second theorem of this chapter is related to the tangents from outside the circle. The lengths of the tangents drawn from an external point to a circle are equal. Okay, so what does this theorem says? That if there is a point outside the circle, okay, then the tangents drawn to it are of equal lengths. Okay, so let me say this is a circle with center O, this is the point A, and this is the point B, and this is the point of contact C. So to prove क्या है, AB is equal to AC. ये prove तनवीर करना है। बेटा माइक म्यूट कर लो, तनवीर माइक म्यूट कर लो बेटा, म्यूट योरसेल्फ। ओके, नाउ टेल मी ये कैसे प्रूव करेंगे कि ये दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल है? हाउ कैन वी डू दिस? What we will do is we will join the circles center. We know this angle is 90 degree. We will also join the point A and O. Okay, so सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा बिफोर द प्रूफ। ओके, कंस्ट्रक्शंस क्या है? ज्वाइन OB एंड OC और ज्वाइन AO। ओके, ये हमारे कंस्ट्रक्शन हो गए। नाउ हाउ विल वी प्रूव? नाउ इट्स अ इजी प्रूफ। कैसे करेंगे बेटा? हमें AB इज इक्वल टू AC दिखाना है। ज्यादातर जब इक्वल दिखानी होती है चीजें, हम किस चीज का सहारा लेते हैं? कौन सी थियरम्स का सहारा लेते हैं? कॉन्ग्रुएंसी का, राइट? So we will try to show that these two triangles are congruent. How can we show that? We know OB is equal to OC radii, right? AO is equal to AO, common. Angle ABO is equal to angle ACO, okay, is equal to 90 degree. Why is that?
जो इससे पहली थियरम थी। ओके, रेडियाई या रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, राइट? नाउ कैन वी से दैट ABO is congruent to triangle ACO? क्या रूल होगा? देखिए, ये इसके इक्वल है, ये कॉमन है, तो दो साइड हो गए और एक एंगल हो गया। कौन सा रूल है ये? सर SAS। हाँ, लेकिन इंक्लूडेड एंगल नहीं है। एंगल तो इंक्लूडेड नहीं है। साइड्स कौन सी हैं? ये और ये। एंगल ये नहीं है, ये है, लेकिन 90 डिग्री है। तो कौन सा हुआ? R राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ओके, बाय RHS रूल। ठीक है, सो RHS रूल जो है वो केवल 90 डिग्री पे ही यूज हो सकता है, विच इज वेयर राइट एंगल इज नॉट द इंक्लूडेड एंगल। ओके, तो RHS रूल से हो गया। नाउ वी कैन डायरेक्टली से दैट AB is equal to AC. ओके, CPC, राइट? सो ये प्रूफ है इसका, सिंपल सा, there is no complexity. Now let's do a couple of questions. Okay, so okay, so AB and AD are tangents. Okay, angle DAB is equal to 40 degree. Find angle DCB. कैसे करेंगे ये? How will we find angle DCB? अरुण कौशिक, बेटा वीडियो ऑन करिए अपना। Your camera should be on all the time. Arun Kaushik. If you're अरुण कैमरा ऑन कीजिए। अरुण कौशिक, या क्लास में हो ही नहीं तुम? he has लो जी, लैपटॉप। okay, that's कुछ नहीं okay. करना है इन्होंने। It is still better if he has left because जो कर रहे हैं वो sincerely पढ़े at least. ओके Right? हाँ, it's better he has left. Yeah. हाँ, बताइए कैसे निकालेंगे एंगल? Anybody has been able to solve? Gaurav, Nidhi, Tanveer, Jyoti, try this question. It's a good question, but it's not tricky. It's not very difficult. So you can solve it. क्या है इसका आंसर? क्या ट्रिक लगाने की कोशिश करेंगे? एटलीस्ट टेल मी समथिंग। देखिए, सबसे पहली चीज जब आप एक क्वेश्चन देखते हो ना ज्योमेट्री में, तो आपको ये या तो एकदम से आंसर समझ आ जाता है, अब नहीं आ रहा है समझ,
तो हाउ विल यू अप्रोच? तो उसको अप्रोच करने का तरीका ये होता है कि क्वेश्चन होगा सिलेबस में से, राइट? अब अगर सिलेबस में से क्वेश्चन है तो सिलेबस की कौन सी प्रॉपर्टी यहां यूज हो सकती है, राइट? ये तो दिस इज नॉट इवन अ कंसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, राइट? तो हम, although it may be, but in this question we don't know if it is concyclic. I can't say it is not, okay? Actually it is, but हमें अभी पता नहीं है ये कंसाइक्लिक है, राइट? तो हम वो प्रॉपर्टी हमें पता नहीं है कि क्या यूज हो सकती है, इसमें नहीं हो सकती है, राइट? तो क्या चीज हमें पता है? हमें ये पता है कि जो टेंजेंट्स हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है, लेकिन यहां लेंथ से भी कोई फायदा नहीं हो रहा है. What is the other property we know? That radius is perpendicular to the tangent. We know that. So let's try to use that property. We will draw the radius. Let's draw the radius to the tangents. तो ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, ये पता है हमें. Now can we solve the question? Can we solve the question now? Nidhi, I cannot see your face. I don't know where your camera is pointing. बेटा फिर कैमरा ऑन करने का कोई फायदा नहीं है if it is not on your face. Readjust your camera so that I can see. Yes, now it is okay. Keep it this way. Okay. So now tell me कि अब हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व? ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये सेंटर है, ये रेडियस है. अच्छा, कैन यू फाइंड दिस एंगल नाउ? कैन यू फाइंड दिस एंगल? निधि आप बताइए, कैन यू फाइंड दिस एंगल? एंगल DOB क्या होगा? What will be angle DOB? बेटा थोड़ा दिमाग लगाओ, ये तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है जो मैं पूछ रहा हूं. एंगल DOB बताने में क्या प्रॉब्लम है? क्वाड्रिलेटरल है ना ये? इज ADOB अ क्वाड्रिलेटरल? बताओ ये, क्या ADOB एक क्वाड्रिलेटरल है ना क्वाड्रिलेटरल? Yes, sir. तो क्वाड्रिलेटरल में आपको 3 एंगल्स पता हैं, तो आप चौथा नहीं पता कर सकते हो. क्या होता है सम ऑफ एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल? Sum of angles in a quadrilateral is? बेटा ये तो अच्छी बात नहीं है, ये तो बहुत बेसिक चीज है. 360 डिग्री होता है ना सम. ये 90, ये 90, 180 तो ये निकल गया, 40 और निकाला तो कितना बचा? 140 डिग्री बचा.
So this is 140 degrees. अब आपको ये एंगल पता चल गया, तो क्या आप x निकाल सकते हो, एंगल x? Yes, sir. What is angle x? What is x? तनवीर, तुम पढ़ाई कर रहे हो या बात कर रहे हो? मुझे लग रहा है बस खाली तुम ये शो कर रहे हो कि हाँ तुम क्लास में हो, कुछ नहीं कर रहे, नथिंग। ज्योति फिर भी पढ़ रही है, गौरव दिखाई नहीं दे रहा है। क्या है क्लास? वेयर इज गौरव? पेज दोनों के दिखने चाहिए जब क्लास। कुछ तुम भी सॉल्व कर लो जब सर बोल रहे हैं तो। बस अटेंडेंस लगानी है। बेटा मैथ्स तो ऐसे कभी भी सीख नहीं पाएंगे। सर कहानी वो सुन, वॉक कर रहा है और बातें कर रहा है, वो वॉकिंग बार बार वॉक ही करता जा रहा है। बेटा बैठ के कॉपी किताब के बिना आप कैसे पढ़ सकते हो मैथ्स? यू नीड योर नोटबुक, यू नीड सॉल्व योर, करनी पड़ेगी आपको। I am not even asking you to carry your book because I am showing the question here. You need to have a notebook and a pencil at least. देखिए आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है आपसे। इस तरह के तो क्वेश्चन 2-2 नंबर के आते हैं एग्जाम में। ये 6 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं है, ये 1 नंबर का 2 नंबर का ऐसा क्वेश्चन आता है। But you have to now really start working hard. This is a red mark, right? This is very dangerous. Exams आने वाले हैं। You have to do well in your pre-boards to write your board exam. है ना ये? This is not a joke anymore, right? We are not in the first month of the curriculum. We are in the last month of the curriculum. And this is, we are revising this for the 3rd time maybe. हाँ, आप बताइए कि x डिग्रीज क्या होगा अगर ये 140 डिग्री है? Can somebody tell me that? What is x degrees? See, ये जो chord है dB, ये सेंटर पे 140 डिग्रीज सबटेंड कर रही है, तो ऑन द सेम साइड ऑफ द सर्कल कितना एंगल सबटेंड करेगी अगर सेंटर पे 140 डिग्री सबटेंड कर रही है तो? सी आई टोल्ड यू कि जो 9th की थियरम्स हैं, दे आर अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि 9th हो गई वो खत्म हो गई, उसके बिना एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा आपका, एक भी नहीं कर पाएंगे आप सॉल्व। इट्स अ वेरी स्मॉल चैप्टर इन 10th, बट 9th के सारे थियरम याद होने जरूरी हैं। ओके, तो एंगल सबटेंडेड ऑन द सेक्टर is half of the angle subtended in the center. 60 plus 30 90, सेंटर पे 90 है तो x कितना होगा 45। यहाँ पे 140 डिग्री है सेंटर पे, तो x कितना होगा? सेंटर पे 140 कहाँ है? 140 क्यों नहीं है सेंटर पे, बताइए। 80, ये 90, क्योंकि 1, अच्छा ये 90 है, ये ये 90, ये 40, तो 180 minus 40 is 140। समझ रहे हो?
समझ आ रहा है? तो ये 140 है, तो ये इसका हाफ होना चाहिए, ये 70 डिग्रीज है। दिस इज रियली अ इजी क्वेश्चन। लेकिन अगर आपको एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर और एट द आर्क याद नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। Okay, let's try and do one more similar question. Okay, so PT is a tangent. Okay, O is the center. Find the angle RTP. ये एंगल आपको फाइंड करना है। बताइए कैसे करेंगे? Take 1 minute and think and tell me how to do this. Tanveer, don't talk to somebody else. Who is looking into your screen? Quickly look into this question and tell me how to do it. Sir, 72. This is also 72. सर एक मिनट, हाँ Yes, sir. देखिए और बच्चे बताएं, एक सेकंड। PT is a tangent, ये tangent नहीं, ये तो नहीं है। we will run out of the time. Okay, but 72 नहीं होगा ना ये एंगल। किस तरह किया आपने? What is this angle? First tell me this. ये 72 है तो ये कितना होगा? ये एंगल एट द सेंटर है, ये एट द पेरिफेरी है, तो क्या होगा? इसका आधा होगा। तो कितना होगा? 36 डिग्रीज होगा। तो ये कितना होगा? How much is this now? अब तो मैंने सभी कर दिया, ये 36 डिग्री